Hello students, today we are going to discuss very important topic in chapter sets. We are going to discuss the meaning of subsets of a set. Let us consider few sets. A is equal to 1, 2, 3. B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Let me take another set. C equal to -3, 0, -3, -2, -1, 0, 1, 2, and so on. One more set D, 1, 2, 3 to 100. All these sets are part of some bigger set. You can say set of integers. वहीं से सारे नंबर आए हैं. सेट ऑफ रियल नंबर से ही सारे नंबर आए हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए के सारे एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है. तो ए नेचुरल नंबर का सबसेट हुआ, उसी से बना है. बी के सारे एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है. मैं कह सकता हूँ बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है, पार्ट है. तो जब सबसेट वर्ड आता है तो दिमाग में आता है पार्ट ऑफ समथिंग. नाउ यू सी दैट हियर all elements of A are in set B. So I will say A is subset of B. All element of B are in C. I will say B is subset of C. All element of D are in C. I will say D is subset of C. Now let me write one more. E equal to 1, 2, 5, 6. All elements, not all elements of A are in E. 3A में है, E में नहीं है. So I will say A is not a subset of E because A has something in it which is not in E. Similarly, B is not a subset of E because B में भी कुछ ऐसा है 3 and 4 जो E में नहीं है. So subset कब होगा? When all elements of a set are in some other set, we'll call, if all elements of A are in set B, we'll call A is subset of B. And if some element of A is not in B, we'll say A is not a subset of B. So let us properly define now subset. A set A is said to be, or defined as, said to be subset of B if each element of A is in B. If each element of A is in B, and we denote it by A subset of B. This is the symbol of subset. Or I will say A is subset of B if and only if X belongs to A implies X belongs to B. And if X belongs to A implies X belongs to B, I will say A is subset of B. If A is subset of B, then any X which is in A must be in B. And if X is in A,
implies x is in B, then I will call A subset of B. A अगर B का सबसेट है तो जो x A में होगा वो B में होगा. And if some x is in A, whatever x is in A is also in B, then A is subset of B. यहाँ तक तो सब बच्चों को बड़े आसानी से 11th क्लास में पता होता है. इसको हम कई तरीके से स्टडी करेंगे. पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट A is 1 2 3, B is 1 2 3 4 5, C is 2 3 7. Here A के all elements of A are in B. 1 is in A and 1 is in B. 2 is in A, 2 is in B. 3 is in A, 3 is in B. If I use this part of the definition, I will say whenever X is belonging to A, it implies X is belonging to B. So A is subset of B. But let me check, is A subset of C? 1 belongs to A, but it is not in C. So A is not subset of C. Similarly, B is not subset of C because B में भी ऐसे एलिमेंट हैं जो C में नहीं. So I will write A is subset of B, but is not subset of, not के लिए हम ऐसे लिखेंगे, and B is not subset of C. Now let us see, is B subset of A? B क्या A का subset है? We have 4 and 5 in B which are not in A. So I will see that B is, we can say B is not subset of A. तो A subset of B है, B subset of A नहीं है. किसी केस में हो भी सकता है, कब होगा वो देखेंगे. Now let me write this in another format. आप ये एग्जाम्पल देखिए यहीं पे दोबारा, इसको फिर हम डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे डेफिनेशन को. ए बी का सबसेट है, यहाँ विजिबल है. विजिबल जब होता है तो बड़ा आसान होता है समझना. ए सबसेट ऑफ बी. 1 ए में है, बी में नजर आ रहा है. 2 बी, ए का एलिमेंट बी में नजर आ रहा है. 3 भी नजर आ रहा है. तो दीज 1 2 3 ऑफ ए, दीज आर विजिबल इन बी आल्सो. सो आई विल से A is subset of B. ये तो हो गया बड़ा आसान. We do not see any element in A which is not in B. A में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं नजर आ रहा जो B में ना हो. अगर A में कोई ऐसा एलिमेंट नजर आ जाए जो B में ना हो तो A B का सबसेट नहीं होगा. जैसे यहाँ पे देखो, आपको 1 नजर आ रहा है A में जो C में नहीं है. तो अगर आप ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ पाते हैं, इफ यू कैन फाइंड सम एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन सेट बी, देन यू विल राइट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अदरवाइज ए इज सबसेट ऑफ बी. तो इस बात को लेट अस राइट दिस वे. इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन x belongs to A implies x belongs to B. I am rewriting that. इसी को I will rewrite in another form. A subset of B, then x not in B implies x not in A. Let us see once again. A अगर B का सबसेट है तो ऐसा एलिमेंट जो B में ना हो, जैसे 6 नहीं है, 7 नहीं है, वो A में भी नहीं होना चाहिए. So for example, let us rewrite the examples. 1 2 3,
पहले सेट का लिखेंगे, सबसेट का, फिर नॉट ए सबसेट का। तो सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, बी में कोई एलिमेंट ले लो जो बी में नहीं है, से 6 इज नॉट इन बी, तो 6 इज नॉट इन ए, 7 इज नॉट इन बी, 7 है या नहीं है, 7 इज नॉट इन बी, 7 इज नॉट इन ए। तो जब भी कोई एलिमेंट बी में नहीं होने से ए में भी ना हो, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ लेट मी राइट अनदर एग्जांपल जिसमें सबसेट नहीं होगा। टू, 3, 4, 6, B is 1, 2, 4, 7. Now I have something in B, something which is not in B. 3 is not in B. एक हो ऐसा, 3 is not in B से अगर आ जाता 3 is not in A, तो मैं कहता कि ये पार्ट फॉलो हो रहा है। 3 is not in B, but 3 is not in B implies 3 belongs to A. You can write 3 does not belong to B, but 3 belongs to A. Therefore, A is not subset of B. आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट सबसेट के केस में। तो ये सबसेट के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी विल इम्प्लाई एक्स इज नॉट इन ए, क्योंकि जो बड़े सेट में नहीं है, सबसेट क्या होता है, पार्ट होता है किसी बड़े सेट का। तो जब बड़े सेट के पास ही नहीं है, तो वो एलिमेंट छोटे सेट में भी नहीं होगा। आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज इंडिया इज कोई एक कंट्री, तो मान लो एशिया का सबसेट है, ठीक है। कंट्रीज का एक सेट बनाया जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह सारी एशियन कंट्री हैं। तो इंडिया जो है उस एशिया सेट का सबसेट है। अब जो चीज़ एशिया में ही नहीं होगी, तो वो क्या इंडिया में होगी? नहीं होगी, क्योंकि फिर सबसेट कैसे होगा, ठीक है। तो जो बड़े के पास नहीं है वो छोटे के पास नहीं होना चाहिए, तभी छोटा बड़े का पार्ट है। तो ए बी का पार्ट तभी होगा जब बी के पास जो नहीं है वो ए में भी ना हो। डायरेक्ट बड़ा आसान होता है कहना ए सबसेट ऑफ बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, लेकिन कई बार हमें इनडायरेक्ट रिजल्ट्स भी यूज करने पड़ते हैं। नाउ लेट अस सी व्हेन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। A is not subset of B if there is some x, at least one x in A such that x is not in B. अब यहाँ क्या बात हो रही है, A B का सबसेट नहीं है, तो A के पास कुछ ऐसा छुपा हुआ सामान होगा, माल होगा इसके पास जो बड़े के पास नहीं है, ठीक है। तभी तो सबसेट नहीं है। अगर ए का सारा ही सामान बी के पास है, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। सो इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन देयर इज सम एक्स इन ए सच दैट एक्स इज नॉट इन बी। तो जब भी आपने प्रूव करना है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसे इल्जाम नहीं लगाना ए के ऊपर कि तुम बी के सबसेट नहीं हो। ए पे ये इल्ज़ाम तभी लगाओगे कि आप बी के सबसेट नहीं हो जब आप ए के पास ऐसा कुछ ढूंढ के बताओगे जो ए में हो बी में ना हो। लेट अस डिस्कस इट विद एग्जांपल। लेट ए इज 1, 5, 9, 11, बी इज 1, 5, 7, 13. Let me check whether A is subset of B or not.
मैंने देखा 1 यहाँ पे है, यहाँ भी है, 5 भी है, लेकिन मैं यहाँ पे किसी तरह कुछ ऐसा ढूंढ पाया 9 जो ए में है और बी में नहीं है। मुझे बी में यहाँ कहीं 9 नज़र नहीं आ रहा। एक एलिमेंट काफ़ी है, ठीक है। 9 इज इन ए बट 9 is not in B. Therefore, A is not subset of B. तो A B का सबसेट कब नहीं होगा? जब A में कुछ ऐसा हो जो B में ना हो. Mathematically, if A is subset of not subset of B, then there is some X in A which is not in B. अब कुछ बुक्स ने प्रॉपर सबसेट की भी बात की हुई है, एक बार मैं बता देता हूँ, बट इसका कुछ ज़्यादा है नहीं। एनसीईआरटी ने इसके क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए। जैसे ए सेट है 1 2 3, तो ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे, और एंड विल सी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो एम्प्टी सेट और ए के अलावा जो ए के सबसेट होंगे वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। जैसे 1 2 इज सबसेट ऑफ ए, इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर मैं यहाँ बी ले लूँ, बी इज 1 2 3 4, तो ए बी के इक्वल नहीं है और ए एम्प्टी भी नहीं है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए मैं सी ले लेता हूँ यहाँ पे, विच इज सेम एज ए 1 2 3, तो सी इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो कई बुक्स ने उसको इक्वल साइन से भी दिखाया है, प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट किया है और जिसमें इक्वल के भी चांस है उसको ऐसे किया है, बट विल यूज दिस सिंबल, इसमें सारा कुछ कवर होता है। तो आई विल कॉल ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। सबसेट तो कहना पड़ेगा, ए के सारे एलिमेंट सी में है बट प्रॉपर नहीं है। तो इन अवर सिलेबस वी हैव ओनली सबसेट नॉट प्रॉपर सबसेट, वो इसी में कवर हो जाता है। रिजल्ट फॉर एनी set A, we have empty set subset of A and number 2 A is subset of A। अब सभी कह देते हैं एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होगा क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कुछ नहीं है तो वह हर किसी का पार्ट होगा, और बड़े मैथ इलॉजिकल से आर्गुमेंट देते हैं, खाली जगह तो सब जगह होती है तो वो सबका सबसेट होगा। दीज आर नॉट मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट। सेकंड समझ में आता है, ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे तो ए सबसेट ऑफ ए, वो बाय डेफिनेशन आ जाता है। इफ आई रीड एग्जैक्ट सेंटेंस फ्रॉम एनसीईआरटी, दे हैव रिटन वी एग्री टू से फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, वी एग्री टू से फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका ये रीजन नहीं है। हमने देखा था ए बी का सबसेट कब होता है, A subset of B if each X is in A implies X in B, ठीक है। और दूसरा केस क्या था, A is not subset if you find something in A such that it is not in B। तो किसी सेट पे आप ये इल्ज़ाम लगा दो भैया तो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, आप लगा सकते हो, तो अब अदालत में जाएगा मामला, ए अगर बी का सबसेट नहीं है और कोई कह रहा है ये जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया ये गलत है, तो ए अगर बी का सबसेट नहीं है, आप इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपको एक्स में ए कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, ए में कोई ऐसा एलिमेंट एक्स जो बी में ना हो। तो लेट अस अज्यूम दैट let if possible, contradiction से होते हैं ना प्रूफ, let if possible phi is not subset of A,
let if possible phi is not subset of A. So this implies there is some x in phi. There is some x in phi such that x is not in A. phi आपने लिया, इस सिंबल करेक्ट कर लेना. You have taken phi, let if possible phi is not subset of A. तो नॉट सबसेट कब होता है? जब पहले सेट में कुछ हो जो दूसरे में ना हो. तो दिस इंप्लाइज देयर इज सम x इन phi such that x is not in A, which is contradiction. As phi is empty set, so x can't belong to phi. ठीक है, phi आप ले सकते हो नॉट ए सबसेट ऑफ ए. तो आपको phi में ढूंढ के बताना पड़ेगा कोई x जो a में ना हो. a में नहीं हो तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा x ढूंढना पड़ेगा जो phi में हो. आप आर्ग्यूमेंट को ढंग से समझना. आपने शो करना है phi इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए. तो a में तो बहुत सारे x होंगे जो नहीं होंगे, लेकिन ऐसा x ढूंढना है जो phi में हो बट a में ना. देन a phi is not subset of A. तो हमने मान लिया x is phi is not subset of A, therefore there is some x in phi which is not in A. अब ये कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि phi empty set है तो इसमें x हो नहीं सकता. तो therefore our assumption is wrong. तो हम क्या कहेंगे? phi subset of A. आपको आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है एग्जाम में आप इसको प्रूफ के लिए पढ़ेंगे, लेकिन पता होना चाहिए. सेकंड इज बाय डेफिनेशन let x belongs to A. So this implies x belongs to A. So whenever any x which is in first set implies that x is in second set, then first set is subset of second set. Note, if A is subset of B, then B is known as superset of A. ज़्यादा तो यूज नहीं होता ये वर्ड, बाई चांस कहीं आ जाए. superset of A, and we write B is superset of A. Now let A is 1, 2, 3. Let us write all subsets of A. Phi single element sets. 1 A का सबसेट है, 2 B है, 3 also, then 2 element together 1 2, 2 1 तो सेम ही होगा इसलिए 1 2 1 3, और 2 एलिमेंट का एक और बनेगा 2 3. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देन A itself आप A लिखेंगे 1 2 3. These are all subsets of A. अब आप एक B सेट भी लिख लीजिए यहाँ पे. B में आप A B ले लो. Subsets of B are phi 1, फिर यहाँ 1 A, phi A B, then AB. These are all subsets of B. पहले के केस में देखेंगे you are having 8 subsets. 1 2 3 4 5, we count 8 subsets.
number of subsets of A are 8, which is 2 की power 3, and of B, number of subsets of B are 4, 1, 2, 3, 4. That is 2 की power 2. We'll observe that for a finite set A, number of subsets are 2 की power n if there are n elements. एक रिजल्ट लिख लीजिए. If A is a finite set having n elements, then number of subsets of A are 2 raised to power n. अब ये देखिए, पीछे हमने इतने सारे जो सबसेट ए के और बी के हमने लिस्ट आउट किए थे, इनका एक सेट बनाए तो उस सेट का भी एक स्पेशल नेम होता है. तो नेक्स्ट हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट ऑफ ए. It is defined as set of all subsets of A. A के जितने भी सबसेट्स हैं उनका जो एक सेट बनेगा उसको पावर सेट ऑफ ए कहेंगे, एंड डिनोटेड बाय PA. Let us have small example. वही आ जाएगा इसमें. If A is equal to 1, 2, 3, write power set of A. तो पावर सेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए जब लिखने हैं तो हमें ऐसे लिखना है. क्वेश्चन ये आ सकता है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए, तो आपने सारे ए के सबसेट्स लिखने हैं. और जब क्वेश्चन है पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो इन सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे. तो सबसेट का सेट बना देंगे 5 सिंगलटन सेट्स 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, देन ए लिख दो या 1, 2, 3. ये प्रोसेस सिंपल होता है. हाउ टू मेक, पहले आप सिंगल एलिमेंट, पहले एम्प्टी सेट ले लो, फिर सिंगल एलिमेंट 1, 2, 3, फिर 2 लेने हैं. 2 कैसे लोगे, 3 में से एक को ड्रॉप कर दो. पहले हमने 1, 2 ले लिया, फिर 2, 3 ले लिया, फिर 3, 1 ले लिया, फिर ऑल एलिमेंट्स. यू कैन नोट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए 8. जितने ए के सबसेट होंगे उतने ही एलिमेंट आएंगे पावर सेट में, क्योंकि पावर सेट में कौन है, ए के सबसेट. तो रिजल्ट हुआ एक, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू n, मतलब ए फाइनाइट सेट है विद n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 raised to power n. इनफाइनाइट है तो पावर सेट में भी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट होंगे. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग few more subsets which are subsets of real line, और उनको हम इंटरवल कहेंगे. रियल लाइन के जो सबसेट्स हैं उनको हम इंटरवल कहेंगे. विल डिफाइन इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल लाइन. तो those intervals are
of great use in studying calculus. We require the function to be continuous in some closed interval, some open interval. So we need to study intervals as subset of real line.